அடி நானே இல்லனாலும் எங்க அப்பா வந்து உங்க 3 பேரையும் கொல்லாம விட மாட்டான். किसको मार रहे? நம்மளுக்கு மறுக்கனே மாளுகடா. அந்த எஸ்பி இங்கதான்டா இருக்கான். நினைச்சேன். इन्होंने तो हमला कर दिया वहाँ. गोली मार दिया एसपी को. एसपी तो भाग गया. पुलिस वाले कैसे हैं? नहीं पता चलेगा ना. काली मिला हुआ है. कम कर देंगे सच बोलो. அந்த எஸ்பிங்கடா. आदमी मारने लेके अच्छा वो काली के निवासी. அந்த எஸ்பி எங்க இருக்கான்னு தடுங்கடா. நீ என்ன மேல படுற? என்ன விட என்ன வேற எடுத்து டேய் புரிபடியா நீ? காலே குடும்பம் இருக்குல்ல. यार सब यही बोलता रहता है. क्या करेंगे अभी? हमला करने लगे हो. ये कौन है? एसपी के? नहीं ना कोई और है. पुलिस वाला ही होगा. मारो कैसे? उससे लगे इसने पुलिस वाले को मार दिया. वो अगर पुलिस वाले को मारेगा तो फिर ये भी हो जाएगा ना फिर उनके साथ. इसके दुश्मन थोड़ी पुलिस वालों के साथ. वैसे इसके दुश्मन तो किसी के साथ भी नहीं थी. जबरदस्ती फंसा. गोलियां चलने लगी. காலி நில்லு. நான் வரேன். ஒண்ணு இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன். நீ அங்கிட்டு பாரு. ஏய் கண்ணா. ये पुलिस वाले शायद छुपे हुए हैं लग रहा है मुझे. या छुपा हुआ है. சுத்து போடுங்க சார். எங்கேயும் போக முடியாது. இந்த பார்க்காவே ஃபோர்ஸே போனாலும் வந்துடும். நான் செத்துட்டேனா ஓம் பே इसको फंसा रहा हूँ. இவனுங்களை டைவர்ட் वहाँ से वो பண்ணு. धमकी दे रहे हैं यहाँ से ये धमकी दे रहे हैं. सर गुंडे थे ज़्यादा हो गए गुंडे. जाएंगे कैसे? पैदल जाएंगे क्या? गाड़ी में बिठाना उसने उन्हें बस. उसने अगर देख लिया ना तब. अच्छा पुरानी गाड़ी पे. अच्छा जिस पे आया था ये काली. जाके नहीं रही. चल नहीं पा रही. टायर पे गोली लगी ना उधर आता. कुछ देखना लेगा यहीं से. देख तो लिया उसने. गोलियां किस पे चला रहे हैं? इस पे तो चला गया. अबे उन्होंने देख लिया एसपी को जाते हुए. शिट देख लिया उन्होंने. शिट. अबे सब गड़बड़ हो गई. ஏடல் தானே. ஆமாண்ணே. இந்த நம்பர் இருக்கா?
டேய் போடா. இல்ல பெரியப்பா கண்ணனை கூட இருந்து கூட்ட சொன்னாரு. நீ போடா நான் பாத்துக்கிறேன். இதான் மாட் டேய் காளி வாடா. गाड़ी पे आग लग गई। தூக்குடா அவனை. मार दी उन्होंने मुझे। டேஞ்சரஸ் வெப்பனா வேணாங்கடா என்ன ஆரம்பிச்சிரு தப்பு பண்ற இத தாண்டா கொஞ்ச நேரம் உசுரோட இருந்தா தான் போலீஸ்காரங்கிட்ட பேரம் பேச முடியும். அப்படியே விட்டுட்டு போனா இந்த இடத்தை தாண்டறதுக்குள்ள முடிச்சிருவானுங்க. ஆட. டேய் बचा के रख रहे हैं उसे। गोली तो चलाई थी शायद उन्होंने कुछ उस पे गोली तो लगी उसे। அண்ணா ஐயா ஆப்பா கிளம்பிட்டப்பா. घोड़ा बुला रहा उसे। என் கூட இருந்த 3 துரோகி நாய்களை நான் சுட்டுட்டேப்பா. சரி காளி काली भी ज्यादा भरोसे से। அப்பா அவசரப்படாத உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது உனக்கு எப்படி தெரியும் அவனுங்களா பண்ணானுங்க அவனுங்க 3 பேர் மட்டும் தானே என் கூட இருந்தாடுங்க. इस तरह फैसला ले लेता है चाहे गलत हो चाहे सही हो। அப்பா உன்னை கிளம்ப சொல்லிட்டாரா? कहीं से शक तो நீ नहीं होगी। இறங்கு சொல்றேன். ஏன் सोच रहा होगा ये गद्दार ना हो इसलिए मार देता हूँ। ये गन निकाल दे उसकी जेब से उसकी। அப்ப நீ எங்க இருந்த? இதை கேட்கதான் நேரமா அதை கிளம்புடா டேய் சொல்ற எங்க இருந்த? பெரியவா மாதிரி என்கொயரி பண்ணிக்கிட்டு ஓ இடத்துல நான் இருந்திருந்தா ஆ? டேய் சுத்து போடுறா. வேணா கண்ணா பேசாம போயிடு அதான் உனக்கு நல்லது उसका फोन चेक करेगा अब तो उसे चल जाएगा पता। அண்ணா காலிட்ட கொடுத்த ஃபோன் நம்பர் வேணும் அண்ணா. விடுங்க சொல்றேன். டேய் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிருக்கானான்னு செக் பண்ணு. குடுறா. எல்லாம் பக்காவா பிளானு. बेबी लोग हो गए क्या? ये पकड़ा गए। ओ भयंकर हाथ पे मार दिया ना उसके। उसका हाथ तो नहीं काट दिया उसने कहीं। ओह माय गॉड हाथ काट दिया। ई बैंगर उसका हाथ का कटा हुआ बैंगर। एक झटके में कर दिया। एसपी को बचा लेता इससे बढ़िया गाँव के पीछे गन लेके चला गया। अरे उन्हें मारेगा नहीं तो फिर वो वही से मार देंगे ना। मार कन्नन को क्यों बुला रहा? वो कन्नन है ये। नीचे पड़ा हुआ शायद। காலி
காளி இந்த பார் என் வேலையில பாதியை முடிச்சிட்ட நீ नहीं கிளம்பிக்க धोखा न दे इसका कोई इसका भी कोई भरोसा नहीं என்னடா பண்ண? சொல்றி எவனை கொண்டுட்டு வந்த? கத்தாத கேட்டு போகுது कौन लगा उसके साइड में எவனோட ரத்தம்டா? इसमें கொண்டியா கொண்டியா? கண்ணன் கண்ணனே கொண்டு வந்துட்டியாடா? போச்சு. என்னால என்னால ஒரு மண்ணி இனிமே நான் உன்னை விட்டு போக பாப்பா மேல சத்தியமா போக மாட்டேன் ए उसका ही फोन आ रहा है இல்லைங்கய்யா வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டேங்கய்யா उसको मारने आएगा वो क्या हुआ कोई बाहर में है क्या என்கிட்ட वेंकट को तो नहीं मार दिया कहीं अरे यार वेंकट ने सब सुन लिया எந்திரி கேளுமா. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஃபோன் உள்ள சார்ஜ் போட்டிருந்தேண்ணே. நீ வர்றதுக்காக தான் வெயிட்டிங்க. எடுத்துட்டு அப்படியே கிளம்பிடுறேண்ணே. क्या करेगा अभी ये? உன் கூட தான் இருந்தாரு. போயிட்டாரா? क्योंकि उसको यहीं छोड़ा था ना इसने उसको यहाँ भेजा था ना इसको भेजा था ना इसने यहाँ நான் அப்படியே கிளம்பிட்டுமா? भाग जाएगा देखो बे देखो भाग गया सुन लेता था सब ना मारने की कोशिश कर रहा है उसे ஏய் என்கிட்ட फिर से अंदर की पड़ गई क्या उसे விட்டுறா முதறடா விட்டுறா वो तो पानी भी नहीं है मर जाएगा उसका எங்கங்க? चाहता नहीं है हमसे எங்க போற? मारना आदमी तो सही था वो अरे यार अब पानी कैसे लेके जाएगा वो? अबे ये आ गया तब तक ये शर्ट क्यों नहीं बदली इसने கண்ணனை காணோம் ஃபோன் போக மாட்டேங்குது கூட இருக்கிற எவனும் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிறான் ஒண்ணும் ஆகாது. ஒண்ணும் ஆகாது. ஃபோன்ல இங்க தான் இருக்கண்ணா இந்த வர காளி क्या करेगा ये क्या कर இருக்கட்டும் நான் வேற ஏற்பாடு பண்றேன் ஆ? போங்கம்மா போங்க வந்துடு சரி விடு பரவாயில்ல வா வா इतना भरोसा करता है क्या ये इस पे अपनी फैमिली ला गया
भरोसा इसलिए करता ना वो। पहले भी उन्होंने उससे उसके जरिए मरवाया था उसे। फ़ोन आ रहा है इनका। இங்கே தான் இருந்தாரு தெரியலம்மா. காப்பி ஏதாவது குடிக்கிறீங்களா? போனை இங்கே வச்சுட்டு எங்கே போனா? प्रॉब्लम यही होगी वेंकट की। எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். ये कहाँ जा रही है? इसकी बेटी कहाँ जा रही थी? अच्छा ये वो दूसरी लड़की है। जा कहाँ रही है? எங்கே போனேன்? வெளியே போக. हॉर्लिक्स है कि नहीं है उनके पास? बोल तो रही थी वो। அலி கூடவா இருக்கா? ஆமா என்ன ஸ்பீக்கர் இல்ல. சொல்லுமா. எனக்கு லிக்ஸ் வேணுமான்னு கேக்குறாப்பா. அவன் முகமே சரியில்லை. தம்பி வண்டி நிப்பாட்டு. நீங்க சீக்கிரம் வாங்க. वे ஒரு கார் இங்க தான் நிக்குது. அத பார்க்க விட மாட்டேங்கடா. வெங்கடையும் காணும்பா. उससे सब हो रहा था। வரமா. காளி என் புள்ள எங்க? फिर वेंकट नहीं सुनता ना तब सब ठीक हो ही गया था। उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। அப்போ நம்ம வீட்ல இருந்து ஒரு தடவை வெளிய வந்துற கூடாது. காதீங்களா? நம்ம போத்து உட்றாவல. बच्चों के करने लगे थे। इसका दूसरा बेटा है ना वो? ना ना अच्छा एक ही बेटा तो था उसका। हाँ एक ही बेटा। ஏய் உன் குடும்பம் மொத்தத்தை புதைச்சிருவேன். उसके अंदर किसकी लाश होगी? लाश थी उसके अंदर? लाश ही होगी शायद। अच्छा ऊपर है ये पता नहीं कौन है। अच्छा वही तो एसपी। अच्छा एसपी उसके अंदर। हाँ என்ன கொல்றதுக்கு காளி அனுப்பிச்சல்ல. ये सब बता दिया इसने। என் கண்ணு முன்னாடியே சுட்டு கொன்னா. कितना वो है यार। मुझे लग रहा था ये ऐसे करेगा। देखो इससे वही बोल रहा। நாள் பண்ணிக்கா. ये देखो நான் கண்டுக்க மாட்டேன். உன் மேல இந்த கேஸ் வராது. इससे भी ऐसे ही बोल रहा। दे मार दिया। सबके साथ ऐसे ही करता है ये। जब मुसीबत होता है तब इसका डील कर लेता है जो भी। वे काले को मार दिया। என் புருஷன் மேல கை வச்ச ஏத்திடுவேன். अरे அவரை ஒண்ணும் பண்ணிடாதடா. அவரை கொண்டுடா என்னால தாங்க முடியாதடா. காளி मधुर वीरन ताने फिर से आगे एक्शन मोड में। पहले मार खा रहा है फिर अचानक से एक्शन मोड में आया रहा। उस वक्त तो कितने सर को मारा था उसने अकेले।
तो वैसे इन्हें भी तो मार सकते हैं। और अभी मार खा रहा था उनकी भयंकर। रियल वाली फाइट दिखा रही है इसमें उन्होंने, रियल वाली फाइट दिखा रही है। हाँ सच में मार रहा होगा जैसे। ओ उसके पैर में वो जिंदा हुआ होगा कि नहीं हुआ वेंकट, पता नहीं। आए पीछे खिड़की तोड़ रही है ये। किसने मारा? ओ इस लड़की ने। ये बच्चों लेकर भाग रहे हैं। அது எங்கடா சொல்லுடா, எங்கன்னு சொல்லுடா. அவன் என்னமோ சொல்றா. क्या बोला उसने? என்ன சொன்னா? मार दिया होगा ऐसे बोलो। சொல்லி தொலைடா. वो तो पुलिस वाले ने बताया था। கூட்டு போவீங்களா? அவனை முடிச்சு விட்டுரு. சரியா? बॉडी बॉडी वो उसकी बॉडी उसने वहां पे तो नहीं बिचार की माइन वो बॉम्ब थे जो, नहीं तो खुद भी उड़ जाएगा फिर तो। वहाँ है बॉडी जोर तो नहीं पड़ा। हाँ उधर माइनिंग होगी इसमें बेचारी की, बॉम्ब बिचार के साथ। अच्छा गाड़ी में क्या गाड़ी के पीछे रखा रहता था ना। इसके अंदर वही बब्बा है। अब कैसे फूटेंगे वो? देखो अपने अपने पैर में लाया था वो वही। भयंकर बस ही मार रहा है उसने। ये थी उसकी वाइफ। इसकी माँ तो नहीं गई है? ये तो इसकी माँ से माँ है शायद इसका। ना ये उसी वाइफ है। अच्छा उसी वाइफ। பிள்ளைங்கள பத்திரமா கூட்டிட்டு போங்க. बच्चे सेफ हैं।
தண்ணி எடுத்து குடி. फिर से चले गए वहाँ से। வா சீக்கிரம் வா. अच्छा ये वही आदमी, अच्छा है ना, இந்த காத்தடியது. आगे इसके भी बच्चे हैं। கொஞ்சம் தள்ளி உட்காரு. ஏமா உன்னை யார் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணா பொறுக்க மாட்டாப்ல, அவங்க வீட்டில் போய் பிரச்சனை பண்ண சொன்னது. உன்னை யார் इसके भी बच्चे तो सेफ थे। मुझे लग रहा था उसी ने मारा हुआ, क्या पता। तो यहाँ पर फिल्म खत्म होती है वीरा धीरा सूरन पार्ट 2, और काफ़ी मतलब अच्छी फिल्म लगी मुझे। अब पार्ट 2 लिखा है इस फिल्म में, तो पार्ट फर्स्ट क्या होगा, मतलब इसके पहले की कहानी होगी, मतलब पार्ट फर्स्ट आने वाला है, पार्ट 2 है, इससे पार्ट फर्स्ट इसका आया नहीं अभी, पार्ट फर्स्ट आएगा इसके बाद। हाँ मतलब पहले आगे कहानी दिखा रहे हैं पार्ट शायद, और फिर वो पुरानी कहानी दिखाएंगे शायद पार्ट 1 में। अब जैसे उसमें नहीं हुआ था, जैसे जो वो है मैड मैक्स, तो उसमें भी ऐसा ही किया था उन्होंने। मैड मैक्स में जो कहानी दिखाई थी वो पहले आगे की कहानी दिखाई थी, वो आगे की थी। हाँ, और फिर जो फ्यूरियस वाला आया था उसमें फिर फ्लैशबैक की कहानी दिखा रहे थे। तो शायद हो सकता है इसमें भी ऐसे ही करेंगे, तभी तो पार्ट 2 इन्होंने पहले लाया है, और शायद बाद में लाएंगे पार्ट 1। पर फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इंटरेस्टिंग थी। एडवेंचर वाली फिल्म थी ना ये। हाँ मतलब एक एडवेंचर भी बोल सकते हैं उसे। हाँ, और एक सर्वाइवल वाली भी थी एक तरह से, किस तरह से वो अपनी फैमिली को मतलब बचाना चाहता है, और वो जो था वही आदमी उसका अंकल, वो अपने वो अपने बेटे को बचाना चाहता है। हाँ, और पुलिस वाला तो मारना ही चाहता था उससे और उसके बेटे को। पुलिस वाला बहुत वो था, वो चालू, बहुत चालाक था। जब भी डील कब दूसरे साथ डील, जहाँ पर भी उसे लगता था कि मुसीबत आ गई, अब जब उसकी जान मतलब ऐसे रहते थे ना फंसी हुई कहीं पे, जब वो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं कर सकता था, तब वो डील कर लेता था, चाहे वो कोई भी हो। वो डील झूठी रहती थी ना उसकी। अब उसने उससे क्या डील की थी उस समय, जो वो था सूरन, क्या सूरन था ना, सूरन नहीं, काली। हाँ काली, तो जो काली था उससे उसने क्या डील की थी कि मैं तेरी फैमिली को प्रोटेक्ट, मतलब सेफ रहेगी, इसमें नाम नहीं आएगा तेरा, और तुम जा सकते हो, और वहाँ पर क्या बोला, वहाँ पर उससे ऐसे बोला तुम अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, और काली को एनकाउंटर कर सकते हो। तो वहाँ पर पलट जाता था, उसे लग गया था वहीं पर कि ये पलटू आदमी है। ये पलट जाता है और ऐसी फेक झूठ बोलता है, उन्हें वहीं पर ख़त्म कर दिया उसे फिर उसके अंकल ने। अब उस अंकल और काली की एक तरह से दुश्मनी, वो थोड़ा सा समझ नहीं आया ना, मतलब काली नहीं है जो वो था एसपी, और वो अंकल, तो एसपी क्यों मरवाना चाहता था उसके अंकल को, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि जो स्टार्टिंग में दिखाया उन्होंने वो वही था कि बस कांटेक्ट कैंसिल हुआ था, बस यही दिखाया गया। वहाँ पर वो एसपी गुस्सा हो गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से नहीं हुआ था गुस्सा। हाँ बस वो हुआ कि पहले तो उसने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, फिर उसने मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं था ना, वो तो वो जो आदमी था पता नहीं क्या था, पॉलिटिशियन था कि क्या था। हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट तो वो दे रहा था उसे, उसका कोई मतलब नहीं था उससे, लेकिन वो तो वैसे उसका काम कर रहा था, वो एसपी उसको बचाना चाहता था उस इंस्पेक्टर को। हाँ जो दिखाया गया था बस इतना ही दिखाया गया था, लेकिन मेन रीज़न नहीं पता चल पाया ना। जब उसने उसे मारा ना काली ने, उसी पॉलिटिशियन को जब मारा, तो तब फिर उसने काली से कहा कि
मतलब इसके जरिए उन्होंने तुझे मरवाया, मतलब इसे मरवाया, वो इसे मरवाना चाहते थे। अब शायद वो बात उसने सच कही थी कि झूठ कही थी, मुझे लग रहा सच ही कही थी शायद उसने, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल शायद इसलिए किया था ताकि ये काली शायद उसे मारे, पता नहीं यही वजह थी कि क्या थी। फिर वो जब वहाँ पे बैठे, फिर उसके बाद वो कुछ बात नहीं कर रहे थे उसके साथ, उसी एसपी के साथ, शायद उसके बाद कुछ हुआ हो सकता है उन्होंने फ्लैशबैक पूरा नहीं दिखाया होगा। हाँ, इसीलिए लिखा है ना उसमें पार्ट 2, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं। मुझे लग रहा है वही चीज़ें नहीं दिखाएगी इसमें, मतलब फ्लैशबैक जो था वो पूरा नहीं दिखाया गया, पूरा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसके बाद शायद कुछ हुआ होगा और इन्होंने शायद एसपी को कुछ शायद धोखा दिया होगा या कुछ किया हो सकता है उसके साथ ना, जो वो उनका दुश्मन बना हुआ था एसपी, और उन दोनों को मारना चाहता था, उन दोनों बाप बेटों को। तो मुझे लग रहा है पूरा नहीं दिखाया उन्होंने फ्लैशबैक, और नहीं तो इस तरह से उनके पीछे क्यों पड़ता हाथ धो के उनको मारने के लिए, जबकि ऐसा कुछ तो इसमें दिखाया नहीं है। और बाकी वो ये दुश्मनी वगैरह मतलब अपने अंकल की वजह से गया वो दोबारा से एसपी को मारने, फिर एसपी को नहीं मारा एसपी का साथ देने लग गया काली ना, ऐसे ही चलता रहा बस। नहीं पर इंटरेस्टिंग थी ना मूवी। हाँ, मूवी अच्छी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब सही बना रही थी कहानी ना जो भी है। हाँ, मतलब ये नहीं था कि हमें जैसे आइडिया लग रहा हो कि आगे ये होगा वो होगा, कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कि आगे क्या होगा फिल्म में, और एक क्यूरियोसिटी थी ना कि आगे मतलब अब क्या होने वाला है, और मतलब एक तरह से सस्पेंस बना हुआ था कि ये क्या करने वाला है और क्या करेगा, अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा ना। हाँ, क्योंकि वो एक तरह से दोनों तरफ से घिरा हुआ था ना, वो एक तरफ उसी से घिरा हुआ था, वो भी उसकी फैमिली को मतलब उसी फैमिली की धमकी दे रहा था उसे, वही जो अंकल था, और वो जो था एसपी वो भी वही धमकी दे रहा था, तो वो दोनों तरफ से घिरा हुआ था। लास्ट में दिखाया नहीं उन्होंने कि उसकी बीवी जैसे जो पीछे वाली खिड़की थी वहाँ से बाहर निकलवा रही थी ना, तो उन्हें बाहर भेज रही थी, और वो भागी वहाँ से कि नहीं भागी, नहीं ये नहीं दिखाया उन्होंने लास्ट में। नहीं, लास्ट में सब वो अपनी फैमिली को लेकर जा रहा था वहाँ से, उस बस में जो बैठे थे। अच्छा, बस में गया था ना, सीन भी था एक। वो तो इसलिए कर रही थी कि उसे लगा कि मतलब क्या पता हम नहीं बच पाए। हाँ, तो इसलिए वैसे कर रही थी वो। हाँ, बाद में साथ में ही थे वो। पर उसे दिमाग बहुत सही लगाया उसने जिस तरह से उनका यूज़ किया ना उन पाँव का, तभी वो इस तरह से वो ड्रामा कर रहा था कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ नहीं तो वो उसे मतलब मार ही दिया था उन्होंने उसे। हाँ, लास्ट टाइम पे मरने वाली नौबत आ गई थी उसकी। हाँ, सही वक्त पे उसने सही फैसला लिया, और उसको मारना भी सही था जो उसने अंकल को मारा। उसका अंकल भी वैसे ही था, वो अपना तो था नहीं, लेकिन वैसे ही था, बोलता था उसे अंकल। लेकिन वो आदमी वो भी ऐसे था, पलटू टाइप का। हाँ, शातिर थे, बोलता था। हाँ, बहुत शातिर था वो भी, मतलब सभी बहुत चालाक थे वो। उसका बेटा, उसकी फैमिली, उसका वो अंकल हो गया, उसका बेटा हो गया, वो एसपी हो गया, सभी तीनों एक जैसे थे। हाँ, झूठ बोलते थे बहुत और पलट जाते थे। तो बाकी एक्टिंग सबकी कमाल की है और मज़ा आता है उसे देखने पे, खासकर अजय सूर्या और विक्रम। हाँ, विक्रम भी, उन दोनों के जो वो दिखता है ना, केमिस्ट्री हो गया उन दोनों का, जो एक्टिंग करने का स्टाइल है बहुत अच्छा दिखता है इस फिल्म में। अजय सूर्या का थोड़ा बहुत वैसा भी लगा रहता है ना, मतलब जैसे उसमें नहीं था उनका कैरेक्टर पुलिस वाला, कौन सी थी वो, नैनी की फिल्म थी जो शनिवारम वाली, तो उसमें भी मतलब उसमें तो शायद उनके रोल एक इंस्पेक्टर का था,
पर जिस तरह से उनका वो था ना एटीट्यूड, वो गुस्से वाला वो उसको देख के थोड़ा बहुत वो उस रोल की याद भी आ रही थी। मतलब काफ़ी कमाल की फिल्में मिल रही हैं उन्हें। मतलब एक्टिंग काफ़ी अच्छी करते हैं वो। और बाकी विक्रम, उनकी एक्टिंग भी बहुत ही दमदार थी इसमें। उनकी तो मतलब हर फिल्म में बहुत अमेजिंग होती है एक्टिंग, और इसमें भी काफ़ी अच्छी की हुई थी उन्होंने एक्टिंग। सही, मतलब यूनिक मूवी लाते हैं वो भी ना। ऐसे मतलब सिंपल मूवी नहीं लाते, जैसे और भी एक्टर हैं, बहुत सारे टॉप एक्टर हैं, लेकिन मूवी हर समय उनकी एक जैसे ही रहती है। हाँ मतलब वो यूनिक करने की कोशिश नहीं करते। हाँ मतलब वो ये कोशिश करते हैं हर बार कि मतलब कुछ नई तरह की फिल्म, हाँ नई तरह की फिल्म दिखाई जाए ऑडियंस को। मतलब वो डिफरेंट तरह की मूवीज़ करते हैं और अलग अलग जॉनर की, और मतलब काफ़ी मज़ा आया उनको इस रोल में देख के ना। अब फिल्म पूरी नाइट में थी ज़्यादातर बस फ्लैशबैक दिखाया ना दिन का, बाकी तो पूरी नाइट में थी फिल्म। थोड़ा बहुत वैसा फील भी आ रहा था जैसे उसमें नहीं होता कैथी में। एक रात का तो सीन था वो। एक रात में पुलिस वाले कैथी में भी ऐसी पूरी एक रात की कहानी थी वो। हाँ वैसे ही थोड़ा, और इसमें भी एक रात की कहानी थी। वो एसपी जो था वो भी एक रात में उन्हें मारना चाहता था, उन दोनों बाप बेटों को। और वो भी एक रात में ही अपनी फैमिली को उसे भी एक रात में बचाना था। फेस्टिवल भी रात को चल रहा था वो। रात को वैसे होता नहीं है ना फेस्टिवल। नहीं मेला था ना, वो मेला होता है रात में कहीं। अच्छा होता पर ये कि मतलब पूरी रात तो नहीं चलता, पर शायद चल रहा होगा आधी रात तक ये तो मतलब मज़ा आया फिल्म को देखने में। और ऐसा लगा कि बोर हो रहे हैं, जिस तरह से मतलब कहानी आगे बढ़ रही थी, और एक ऐसा लगा वैसा फील आ रहा था ना सर्वाइवल वाला। क्या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जिस तरह से थे ना उनकी इमेज थी, जिस तरह से वो अंकल और उसका बेटा काफ़ी वैसे थे, वो अमीर पॉलिटिशियन टाइप के। पॉलिटिशियन तो नहीं थे वो, पर ऐसे ही कुछ वैसे बिजनेस वगैरह हाँ बिजनेसमैन थे वो। तो पावर काफ़ी थी उनके पास। पुलिस वाला भी घूमता रहता था उनके आगे पीछे। बाद में एसपी बन गया, तब एसपी बन गया, उन्हें घुमाने लगा। नहीं एसपी तो पहले से था वो शायद ना, उस समय एसपी नहीं था वो, जब पास टाइम पे दिखाया ना उसको। अच्छा तब प्रमोशन हुआ, तब नहीं कहा था प्रमोशन, बड़ी मुश्किल से ये प्रमोशन मिला है मुझे। उनके पैर पढ़ के। ओवरऑल फिल्म अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।